Hey everyone, here it is Yashi. I'm a student. I have started the new YouTube channel to tell you about the grammar of the class 10th of CBSE board in French. So today we will be starting from the chapter 1 which is named as Retrouver nos amis, and today I will be starting from this dialogue. This dialogue is between two person who are telling each other about themselves, like their name, age, where their parents work, and where they live. The most important thing in this passage is the term full form of terminal S and terminal L, which you can see terminal S means scientific and L means literature. This is the most important thing. It comes in the civilization part, full form of terminal S and L. If I talk about this passage, this is about the vacation. It comes in the writing part. Question comes like you have to write a letter to your friend explaining about your vacations. In this passage, the Akansha has written the letter to her friends explaining her vacations, where she visited, how was the weather, where are the places which she visited in the city, and all. So this the letter comes. You can take help from this letter also, or you can write it by your own. Okay, so the grammar section in chapter 1, there is no new add-on in chapter 1 of class 10th grammar section. You all might have done it in class 9th, like adjective, demonstrative, articles, present tense, and passé composé. This all you have done it in class 9th. Those of you have not done it in class 9th or might not have knowing it, I will soon be posting the videos of class 9th grammar section. You can laterly check from it. But now today I will be explaining you the futur on most important topic of class 10th grammar, that is futur antérieur, which is mentioned in class 10th chapter 2 in French. So first of all, let me just explain you the dialogue. This dialogue of chapter 2. This dialogue is between two classmates. They are sitting in the cafeteria and they are discussing about their projects, about their uh, universities, and about the part-time jobs which they will prefer to do or they are doing, so that they can earn some amount of money. Okay, so now the most important topic is of futur antérieur, which is the new add-on in class 10th grammar section. So okay, what is futur antérieur? Futur antérieur represents a past action to the other action in future. Okay, इट मीन्स दैट एक पास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर ऑन्टेरियर, जो एक फ्यूचर एक्शन में होगा. ओके, अब फ्यूचर ऑन्टेरियर को हम कंजुगेट कैसे करते हैं? हाउ वी कंजुगेट फ्यूचर ऑन्टेरियर? इट इज़ कंजुगेटेड लाइक अवॉर एंड एथर वर्ब फ्यूचर टेंस प्लस पार्टिसिप पासे ऑफ द वर्ब. अवॉर और एथर वर्ब की फ्यूचर टेंस आप क्लास 9 में कर चुके हैं. हम लोग अवॉर और एथर वर्ब की फ्यूचर टेंस लिखते हैं प्लस पार्टिसिप पासे ऑफ द वर्ब लिखते हैं, जो मेंशन होती है सेंटेंस में. ठीक है, अब कौन सी वर्ब अवॉर के साथ जाती है, कौन सी वर्ब एथर के साथ जाती है? द 16 verbs mentioned in passe composite portion and all pronominal verbs are conjugated with eth, rest all with avor. आपने पासे कंपोजे क्लास 8th की बुक में करा होगा. उसमें जितनी भी 16 वर्ब्स थी, आले, वेनी, नेत्र, मुरीर एंड मैनी मोर, वो सारी वर्ब जो एत्र वर्ब के साथ जाती थी पासे कंपोजे में, वही यहाँ पे भी एत्र के साथ जाती हैं. और प्रोनोमिनल वर्ब्स जो एसी के स्टार्ट होती थी, एसी से, एसी लेवे, एसी ब्रूजे, वो सारी प्रोनोमिनल वर्ब्स भी एत्र के साथ जाती हैं, जैसे पासे कंपोजे में जाती थी एत्र के साथ. और रेस्ट ऑफ द वर्ब जितनी भी हैं वो सारी अवॉर के साथ जाती हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल जे सराई आले. आले वर्ब हमारी 16 वर्ब्स में आती है, तो इसलिए हमने एत्र वर्ब की फ्यूचर टेंस लगाई है और आले वर्ब की पार्टिसिप पासे लगा दी है. ठीक है, और आई दोने दोने वर्ब ना तो 16 वर्ब्स में से आती है ना ही प्रोनोमिनल वर्ब से, तो ये अदर वर्ब्स में से आती है, तो ये इसलिए अवॉर की फ्यूचर टेंस लगा दी है और उस वर्ब का पार्टिसिप पासे लगा दिया है. तो ये ऐसे कंजुगेट होती है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 16 वर्ब्स जो पासे कंपोजे में एत्र के साथ जाती थी और प्रोनोमिनल वर्ब्स जो एत्र के साथ जाती थी, वही यहाँ पे भी एत्र वर्ब की फ्यूचर टेंस के साथ और वर्ब का पार्टिसिप पासे लगेगा. और सारी वर्ब सारी की सारी अवॉर के साथ जाएंगी. ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फ्यूचर ऑन्टेरियर का आता है वो ये है कि कहाँ प्लस फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस फ्यूचर रूल होता है, लॉर्ड्स को प्लस फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस फ्यूचर रूल होता है, और ऑसितोत को प्लस फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस फ्यूचर एक रूल होता है. ये 3 रूल्स होते हैं
जहाँ पे कि क्यू यू ए एन डी प्लस फ्यूचर ऑन प्लस फ्यूचर, मतलब कि जैसे कि हमारे CBSE के पेपर में 3 मार्क्स की वर्ब्स आती हैं, तो एक सेंटेंस में क्यू यू ए एन डी लगा हुआ होगा प्लस फ्यूचर ऑन वर्ब लिखी हुई होगी और ब्लैंक होगा, तो आपको उसमें फ्यूचर टेंस लगाना है वर्ब का, जो भी वर्ब मेंशन होगी ब्रैकेट में, या फिर का डैश प्लस फ्यूचर टेंस लिखा होगा तो आपको फ्यूचर ऑन लगानी है, या फिर LORSQUE लिखा होगा प्लस डैश प्लस फ्यूचर होगा तो आपको फ्यूचर ऑन लगानी है, क्योंकि लॉर्ड्स को दे रखा है, ब्लैंक है, उसके बाद फ्यूचर है, तो रूल होता है लॉर्ड्स को प्लस फ्यूचर ऑन प्लस फ्यूचर, तो वहाँ पे आप फ्यूचर ऑन लगा देंगे। बस आपको ये देखना है जो ब्रैकेट में वर्ब है क्या वो एतर के साथ जाती है या फिर वो अवॉर वर्ब के साथ जाती है, और एतर और अवॉर वर्ब की पहचान करने का वो है 16 वर्ब्स जो पासिंग कंपोजिट में एतर के साथ जाती थी, शायद आपने अपोजिट वर्ड्स की तरह याद कराओ या वेंडर ट्रैम्प वाले रूल से याद कराओ उस चीज़ को, ठीक है। तो वो 16 वर्ब सारी एतर के साथ जाएंगी और सारी प्रोनोमिनल वर्ब्स एतर के साथ जाएंगी और सारी रेस्ट ऑफ द वर्ब्स अवॉर के साथ जाती है। तो ये था हमारा फ्यूचर ऑन का डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू ऑल आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी सॉल्विंग इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, ओके। और एंड फ्यूचर ऑन का आप ढंग से कर लें एक बार, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल बी सॉल्विंग दैट, ओके। सो या दिस वॉज फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन। मेर्सी बोकू तुतले मोंत ओरवा ए बोनजून ने, मेर्सी।